السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پاک بزنس ٹی وی سے آپ کی ہوسٹ نمرہ خان۔ آج ہم موجود ہیں ایک نیو برانڈ کی لانچنگ میں۔ یہاں پر بہت سارے جو ہے ہمارے ایگزیکٹو کلاس آئے ہیں، بہت سارے بزنس کمیونٹی، آپ کو ہر طرح کے فیلڈ کے بالکل ہی موسٹ پاپولر لوگ یہاں پر ملیں گے۔ مسٹر رضوان جعفر اور مسٹر حمزہ تبانی ایک نیو برانڈ لانچ کرنے والے ہیں۔ جی بالکل اپ کمنگ برانڈ جو ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں۔ الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الشهادة هو الرحمن الرحيم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ معزز خواتین و حضرات، جو کہ آج کی یہ شاندار تقریب جو کہ میڈ ان پاکستان کی کامیابی کے بعد اب ایک ایسے ایگزیکٹو کلب کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اس ملک پر جس طرح سے ہمیشہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اب ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اس میڈ ان پاکستان کے حوالے ہی سے اپنی اس تمام تر ان سی اوز، ان تمام تر شخصیات کی زبردست پذیرائی حاصل کر سکیں۔ لیکن اس سے قبل ہم اپنے اس ملک سے محبت کا اظہار بھی کچھ اسی طرح سے کریں کہ ہم سب میں جذبہ حب الوطنی اسی طرح سے اجاگر ہو۔ آئیے ادب اور احترام سے کھڑے ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ۔ یہ جو میڈ ان پاکستان ایگزیکٹو کلب ہے، یہ بیسیکلی ہے کیا؟ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ویری کوئک، کیونکہ میرے پاس بہت مختصر وقت ہے۔ یونس داغا صاحب، آپ کا اسپیشل سبجیکٹ بھی یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں جہاں ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے تھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ یعنی ہماری ایئر لائن، یعنی ہم نے جن کو ایئر لائن سکھائی ہے کیسے ہونا چاہیے، وہ کہاں نکل گئے اور ہم کہاں رہ گئے۔ اور اسی طرح سے ہر پروڈکٹ کے اندر یہ حال ہوا ہے۔ ایون آخر میں کرکٹ کا بھی یہ حال ہو گیا کہ جن کو ہم نے کرکٹ سکھائی انہوں نے ہمیں ہرا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک نیشن جو ہے جب وہ ڈکلائن کی طرف ہوتی ہے تو سب کچھ ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ جو ہے مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور میں ابھی امریکہ میں تھا لاسٹ منتھ، یورپ میں تھا، وہاں پہ ہم نے بہت سے ٹی وی شوز کیے۔ پاکستان اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ مایوسی کے عالم میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب ہم کیسے جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ یہاں جو بڑے امپورٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی سرپرستی میں ہم اس مایوسی سے قوم کو نکال سکیں گے، اور ہم اپنی پروڈکٹ پہ اعتبار کر سکیں گے، اپنی پروڈکٹ کو آگے لے جا سکیں گے۔ یہ جس میں ہم نے فوکس کیا ہے سر میڈ ان پاکستان میں، وہ ہے پروڈکٹ، سروسز اور ہیومن ریسورس۔ پروڈکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم یورپ جاتے ہیں تو یورپ کی پروڈکٹ ہمیں نظر آتی ہے وہاں پہ زیادہ تر، اور ہم بہت سی ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں ان کے ہم نام بھی نہیں جانتے ہیں، لیکن وہ اس میں فخر کرتے ہیں، اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی پروڈکٹ کو اپنے ملک پہ لانا ہے اور پھر ایکسپورٹ کرنا ہے۔ اب پروڈکٹ جو ہے وہ صرف محب وطن کی بنیاد پہ میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان کی پروڈکٹ کو استعمال کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پروڈکٹ پہ کوالٹی لانی ہوگی، اس پروڈکٹ کو کمپٹیٹو بنانا ہوگا، جبھی آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اور ہمیں اسی طرف جانا ہوگا، ہمیں صرف نعروں کی بنیاد پر اور باتوں کی بنیاد پہ پروڈکٹ کو نہیں لے کر آنا ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ کیسے کمپٹیٹو ہوگی، اس کو لینڈ جو ہے کیسے مل سکے گی، اس کو جو ہے وہ
उसके अंदर बिजली, पानी, गैस की सहूलतें कैसे आ सकेंगी, या बिजनेस कम्युनिटी के टॉप बिजनेसमैन मौजूद है, आपसे अच्छा सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है, लेकिन अफसोस कि वो हल निकल नहीं पाता है। इसी तरह टैक्सेस के मामला में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। तो इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव क्लब बनाया जा रहा है कि इसमें, इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी कराची चैम्बर मौजूद है, सारे चैम्बर मौजूद है, ऑलरेडी फेडरेशन मौजूद है, यही काम कर रही है। लेकिन TDAP के साथ मिलकर हमने जब ये इवेंट किया और उसके बाद हमने TDAP के साथ मिलकर हमने कहा कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जहां तमाम CEOs को कंफर्ट लेवल पर हम जो शामिल कर सकें। इसी तरह सर्विसेज, IT की फील्ड के अंदर भी बड़े हमारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स हमारी। मैं वेरी क्विक आगे चलना चाहूँगा। इस सिलसिले में AK मेमन साहब, हम जो है वो एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप का डिज़ाइन है और इसमें हमें जो है वो पाकिस्तान के तमाम इदारों की सरपरस्ती और कोलैबोरेशन हासिल है। और इस ऐप के अंदर जो है वो हम क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं, ये मैं वेरी क्विक आपको बताना चाहूँगा। आज इसका हम डिज़ाइन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं कि किस तरह से ऐप जो है काम करेगी, लोग इसमें कैसे रजिस्टर्ड हो सकेंगे, ये बहुत सारे एरियाज़ हैं, इसमें जो है कैसे हम आगे काम कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर हमने 12 कैटेगरीज रखी हैं और इनके आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, इन कैटेगरीज के अंदर मौजूद होंगे। टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स, स्पोर्ट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये वो चीज़ें वैसे कि जिनमें हम ऑलरेडी काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इसमें और बेहतर होने की ज़रूरत है। सी फूड एंड पोल्ट्री, देन राइस, सीरियल्स, सॉल्ट, सल्फर, स्टोन एंड सीमेंट्स, फूड, बेवरेजेस, फ्रूट्स, फर्नीचर, इंटीरियर डेकोर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे कनेक्टेड हर शोबा आज मौजूद है। और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम आप यहाँ पे मौजूद हैं और हम जो है इसका आगाज़ कर रहे हैं आज से इस एग्जीक्यूटिव क्लब का। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी सरपरस्ती इसमें शामिल होगी और हम एक नई ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे। हम इसको जो है वो ओन करेंगे बड़े ज़बरदस्त और भरपूर अंदाज के अंदर। क्लबिंग होनी चाहिए इस मौके पर और आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और खासतौर पर सरपरस्ती के अंदर हम इसको आगे बढ़ सकेंगे। इसी दुआ के साथ अपनी बात का अख्ताम करना चाहूँगा। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। ये भी मुमकिन है, बता दे कोई काम की बात, चलो एक नजूमी को हाथ दिखाया जाए। और वो सारे आप लोग हैं जो कि हमें रास्ता दिखाएंगे। और देखना यह है कि कौन आता है साया बनकर, धूप में बैठकर लोगों को बुलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्सीलेंस क्लब के शानदार ओपनिंग सेरेमनी पे और रिजवान जाफर के लिए पुरजोर तालियां बजाएं ताकि इस नौजवान ने जितनी ज़बरदस्त तरीके से सोच के साथ इस नए अज़्म के लिए आगे निकला है। हमारी बहुत सारी दुआएं और उस वक्त पाकिस्तान के बड़े लीडिंग CEOs भी यहाँ मौजूद हैं। जिस काम को चाहा, जिस काम को सोचा, वो काम कर दिखाया। हर काम में है जिद्दत के पानी, तशरीफ लाते हैं मुबीन जुमानी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पुरजोर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा मोहतरम जनाब ऑनरेबल केयरटेकर मिनिस्टर मुबीन जुमानी साहब का। वो कहते हैं ना कि बी पाकिस्तानी बैड पाकिस्तानी। हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है, बढ़ाना है। और जहाँ तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ मैं जितने यहाँ CEOs बैठे हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं, शायद उनमें से थोड़ा सा 1% मैं भी हूँ जो कि एक रूरल इलाके से होके हमारा बिजनेस एग्रीकल्चर भी है, हमारी शुगर इंडस्ट्री भी है, हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है और वो यहाँ भी है और मुल्क से बाहर भी है और होटलों में भी है हमारी कारपोरेशन जो मेरी कंपनी है। सबसे बड़ी जो हमें बाहर जब जाते हैं तो प्रॉब्लम हमें जो सामने आता है, मेरा ख्याल है आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो चीज़ हम शुरू में एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जब सेकंड कंसाइनमेंट जाती है तो उसकी वो क्वालिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें ये थोड़े से प्रॉब्लम है कि जो लोग जो हैं वो आस्ता आस्ता ट्रस्ट कम करते हैं। इस जो क्लब बनी है, मैं समझता हूँ इसके थ्रू हम सबको मोटिवेट कर सकते हैं और ये जज्बा हमें होना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं
पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। हम जानते हैं कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, हमने मेहनत की है। आप लोगों में से सारे बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने स्ट्रगल की होगी और हम स्ट्रगल के ज़रिए हम पहुँचे हैं। तो मैं इस नौजवान की हर काविश की कदर करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि उनकी मेंबरशिप के लिए अगर उनको किसी किस्म की कहीं भी ज़रूरत है, हेल्प है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले आज पहला आगाज़ मैं ही कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ अपनी मेंबरशिप ले रहा हूँ। आगे भी मैं सब दोस्तों को कहूँगा कि जितना भी हो ऐसी चीज़ों को हम हेल्प कर सकें, आगे बढ़ाएं। तो मेरी दुआ है कि ये जिस मकसद के लिए आए हैं उसमें कामयाब हों और मेरी दुआ है कि मेरा पाकिस्तान जो है जिन मुश्किलातों में है अल्लाह ताला हमें उनसे निकाले और हमारे ऊपर कुछ भी जो मुश्किलें हैं, गुर्बत है, लोगों को कुछ नहीं मिलता, मुफलिसी है, बीमारियां हैं, हमें उनसे अल्लाह निजात दे। और इस वक्त अगर मैं यहाँ आके अपने मुसलमान भाइयों के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए जो वहाँ हो रहा है हमारे मुसलमानों के साथ, इंसान लरस जाता है जब वो चीज़ें देखता है। और वो जो वहाँ फिज़िकली बैठे हैं उनकी क्या हालत होगी। हमें चाहिए कि उनके लिए हम दिल खोल के जहाँ भी जिस तरीके से भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करें। जिसके पास मदद की ताकत नहीं है वो अल्लाह से दो हाथ उठा के उनके लिए दुआ कर सकता है कि या अल्लाह हम मुसलमानों के ऊपर या ख़ास करके हमारी जो मुक़द्दस ज़मीन है उसके ऊपर जो मुश्किलातें हैं, मेरा रब उनके लिए माफ़ करे और उनको फतेहायाबी दे। इनके साथ साथ मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी। बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करते हैं आज की हमारी इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस नागा साहब, केयरटेकर मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मुझे ये यकीन है कि जिस दिन हमने तय कर लिया कि हमने सब ने मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना, तो पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ये अपनी तरफ से जिसको कहते हैं ऑफ़र करता हूँ कि आपका जो क्लब है और आपके जो ये फोरम है, इसके साथ हम एक MOU साइन करते हैं। जितना हम एडवोकेसी के ऊपर रिसर्च का काम कर रहे हैं, आप आइए, हम आपके साथ शेयर करते हैं और उसमें फिर हम आपकी एक इनपुट के मुताबिक हम उसको आगे बढ़ाते हैं और हम सारे मिल के बिज़नेस कम्युनिटी की एक पॉलिसी के अंदर एडवोकेसी को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दिलवानी चाहिए, ताकि जो ये पॉलिसी हमारे बनाए दे देते हैं हमारे लोग और फिर उसको नुकसान इकॉनमी को और ख़ासतौर बिजनेसेस को होता है, वो करते हुए वो सोचें कि जी यहाँ पे एक थिंकिंग फोरम है, ये सोच समझ के बात करते हैं। तो अभी हमने जब ये काम शुरू किया तो मैं आपको ये बताऊँ रिजवान भाई कि हमने जो है इस वक्त पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड ने जो हमारा GCC का इस वक्त FTA साइन हुआ है, हमारे जो साहब बैठे हैं उनको पता होगा, तो उसके ऊपर जब हमारा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इनके साथ साइन हुआ है, तो उसकी सारा नेगोशिएशन पेपर हमारे इस फोरम ने बनाया है, हमारे पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड ने। तो ये उसकी अब एक समझें कि रिकग्निशन आ रही है आस्ते आस्ते गवर्नमेंट सर्कल्स में, वो कब अहमियत दे रहे हैं हमारे इस पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड को। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ मिल के काम करें और ये सारी एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि पॉलिसी को किस तरह हम इम्पेक्ट कर सकते हैं, पॉलिसी बनाने पे हमारा कितना असरअंदाज हमें होना चाहिए ताकि उनका हमें नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। तो इन अल्फाज के साथ और आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये फोरम बहुत तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह यूनुस नागा साहब बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम जनाब यूनुस नागा साहब से और मोहतरम जनाब मुबीन जमानी साहब से कि सर कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव क्लब के उन सब की नुमाइंदगी करते हुए जमानी साहब बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम जनाब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमजा याकूब तबानी साहब को यकीनन
آج جو دنیا کے اندر چیلنجز ہیں اس کے اندر وہی ملک ترقی کرے گا جو چیزیں پاکستان کے اندر ہم خود اسمبل کریں گے اور اس کو پروموٹ کریں گے. بڑھتی ہوئی ڈالر کی قیمت کو دیکھتے ہوئے امپورٹس کے بل جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹس ہماری رکی ہوئی ہیں, تو جتنی چیزیں ہم لوکلی مینوفیکچر کریں گے اس سے ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا, اور آگے جا کے ایکسپورٹ کریں گے تو ہمارے فارن ریزروز میں بھی اس سے فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویسے ہی 72 سال سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, یہ نیا پاکستان ہے, یہ پرانا پاکستان ہے. ہم اسی میں کھو گئے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں, اور کس ڈائریکشن جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے. آزادی کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. کشمیر کے ان مسلمانوں سے, فلسطین کے اس مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے, اور اس سب چیزوں میں قصور ہمارا ہے. اور ہم ہی سب مل کر, تمام بزنس کمیونٹی, لوگ جس طریقے سے آج محنت کر رہے ہیں, ہم سب مل کر اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ٹھکانوں کی, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. تو میری بہت ساری دعائیں بھی اس کے ٹیکر حکومت کے لیے ہے, اور میں شعر پہ ختم کروں گا کہ اپنے مرکز سے دور نکلو گے تو خواب ہو جاؤ گے, اپنے مرکز سے دور نکلو گے تو خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے, اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو, تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. بڑا خوبصورت شعر کے ساتھ کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے, افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بلا مت دینا, سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو تصادم سے بچو, بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے, اور اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ نوجوانوں کی اسی طرح کی سوچ ہمارے اس ملک کی تقدیروں کو بدلے گی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے آج جو یہ لانچنگ سیریمنی ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے لانچنگ سرمنی جو رضوان جعفر صاحب نے اور حمزہ بھائی نے رکھی ہے, ماشاءاللہ ان کا ہمیشہ سے یہ پروٹوکول رہا ہے کہ کوئی بھی چیز لانچنگ کرتے ہیں یا کسی چیز کو بھی بناتے ہیں تو اسی طرح کا ایک بہت اچھا ایونٹ کرتے ہیں. انہوں نے کراچی کی بہت ساری ڈگنیٹریز کو بلایا, بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں آؤٹ آف کراچی بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں. تو میں رضوان جعفر صاحب کو اور حمزہ تمانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اتنا اچھا ایونٹ رکھا ہے جس میں آپ دیکھیں گے ابھی کافی ہائی فائی پرسنالٹیز بھی آئیں گے, کچھ منسٹرز بھی آئیں گے. تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا ایونٹ آج کا. تھینک یو. السلام علیکم. السلام. یہ اتنا اچھا ایونٹ آپ نے آج آرگنائز کیا ہے, پاکستان ایگزیکٹو کلب کی جو ہے لانچنگ سیریمنی ہے آج, کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ؟ جی آج یہ میڈ ان پاکستان ایگزیکٹو کلب کی لانچنگ سیریمنی ہے, اور پچھلے دنوں ہم نے میڈ ان پاکستان موومنٹ کا آغاز کیا تھا جس میں ڈاکٹر عارف الوی صاحب تشریف لائے تھے, پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور ہم نے پاکستان کے ڈفرینٹ سی اوز کو ایک جگہ جمع کیا تھا. تو آج ان سی اوز کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, اور ہم اپنی ایپ بھی لانچ کر رہے ہیں میڈ ان پاکستان کی. تو اس حوالے سے آج کا پروگرام ہے, اور ہمیں امید ہے آج بڑی تعداد میں سی اوز ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ. بیسٹ آف لک. جی لانچنگ سیریمنی ہے میڈ ان پاکستان کی ایگزیکٹو کلب کی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ رضوان ماشاءاللہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نیا کام خاص طور سے پاکستان کے لیے کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے, اور یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے, اچھی کوشش ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی مثبت اثرات آئیں گے اور بہت ہی مثبت نتائج نکلیں گے انشاءاللہ. یہ مجھ سمیت ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ پاکستان سے محبت کرے. ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں مریں گے, تو انشاءاللہ العزیز یعنی کہتے ہیں جس قدر ہم خدمت کر سکیں پاکستان کی, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا, جس میں سارے موسم ہیں, سارے پھل ہیں, سارے پھول ہیں, سب چیز ہے. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. شکریہ. اتنا اچھا ایونٹ جو ہے مسٹر رضوان جعفر نے آرگنائز کیا ہوا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت اچھا ایونٹ ہے, اور اس کا ٹائٹل بہت امپریسو ہے, میڈ ان پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان موومنٹ کامیاب ہوئی تھی, اسی طرح میڈ ان پاکستان موومنٹ کو بھی کامیاب ہونا چاہیے. اور آج کل دیکھیں جو اس وقت ریسنٹ انٹرنیشنل سینیریو ہے, جو دنیا کے حالات ہیں, اس میں تو اور بھی ضرورت ہے میڈ ان پاکستان کی کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں, اپنی پروڈکٹس کو یوز کریں, اور کوئی ایسی چیز
नहीं है कि जो अगर हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता हमारी जान पे बन जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। अगर कुछ थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और फॉरेन एक्सचेंज को बचाना चाहिए और मुकम्मल सपोर्ट करना चाहिए मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट को। बिल्कुल जी, शुक्रिया। मिस्टर रिजवान जाफ़र ने और हमज़ा तबानी ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है मेड इन पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव क्लब के नाम से, क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजवान जाफ़र को और हमज़ा तबानी को मुबारकबाद पेश करूंगा आज के इस इवेंट के ऊपर। और ये जो इसका जो नाम दिया गया है मेड इन पाकिस्तान, वो यकीनन कि वी प्राउड ऑफ दैट कि वी आर पाकिस्तानी। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान का लफ्ज़ जहाँ पर भी इस्तेमाल हो, जिस तरह से हम में पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, इसीलिए हम मेड इन पाकिस्तान की हर चीज़ बनने पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें इसको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए ताकि मेड इन पाकिस्तान इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हर इंसान जो तो अपनी इंडस्ट्री की तरफ जाए, सोचे कि मैं पाकिस्तान में अपना क्या किरदार अदा कर सकता हूँ, क्या चीज़ बना सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपकी कोई भी इंडस्ट्री या कोई आपकी फैक्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर लगे। उन बड़े पैमाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उसको जो है तो छोटे पैमाने से शुरू किया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आपकी बढ़ती जाएगी। आप लोग अपना कारोबार शुरू करेंगे छोटे से, और वो आप जो मेड इन पाकिस्तान जो छोटे पुर्जे होते हैं, अगर वो चीज़ें बनाकर आप देते रहें बड़ी इंडस्ट्रियों को, तो ग्रेजुअली जो तो इंसान आस्ते आस्ते बढ़ता आपका तरक्की करता जाता है। बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है मिस्टर रिजवान जाफ़र ने और मिस्टर हमज़ा तबानी ने। क्या कहते हैं आज की इस गैदरिंग के बारे में? मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ रिजवान जाफ़र साहब को और हमज़ा तबानी साहब को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया मेड इन पाकिस्तान। मैं समझता हूँ ये चीज़ हर पाकिस्तान कौम के फ़र्द को समझनी चाहिए कि मुल्क जब भी तरक्की करेगा जब हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ों को फ़रोग़ देंगे, और इंशाअल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ रुझान बढ़ रहा है और ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एक दफ़ा सबको, जितने भी इनके मेंबरान हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ जो है ये एक वसी तौर पे पूरे मुल्क में इसकी एक मुहिम चलाएँगे और इंशाअल्लाह मुल्क के लिए तरक्की होगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मेड इन पाकिस्तान की एक नया जो है वो ब्रांड एक तरह से लॉन्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। दोनों मेरे दोस्त हैं जिनके घर पे प्रोग्राम हो रहा है। हमज़ा तबानी वो भी मेरा दोस्त है, और जिसने मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट बनाई है वो तो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। रिजवान जाफ़र को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। माशाल्लाह आज उन्होंने बहुत बड़ा मजमा जमा किया हुआ है, और रिजवान जाफ़र की जो कामों में एक क्रिएटिविटी होती है इतने सालों से मैं उसको देख रहा हूँ। जब उन्होंने यूथ पार्लियामेंट शुरू किया था, उसके बाद वो रोटरी क्लब में आए, वो एक जिद्दत के बानी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, साफ़ सुथरा काम करते हैं, माशाल्लाह बोलते बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेटर हैं। तो आज मैं उनको मुबारकबाद देने आए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। I represent basically steel industry of Pakistan. I'm the CEO and owner of Fazan Steel Group. And it was a big achievement. रिजवान जाफ़र तो आज से नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अरसे से ये कोशिश और काविशें कर रहे हैं। इज़ अ वेरी यंग डायनामिक प्रोफेशनल, और जिस तरह से वो लोगों को लेके चल रहे हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है मेड इन पाकिस्तान का, इट्स अमेजिंग, इट्स फिनोमिनल। और जिस तरह से यूनुस डागा साहब ने, हमारे जो इंटर मिनिस्टर हैं, जो माशाल्लाह फैक्ट्स के हवाले से बात की, और मुबीन जवानी साहब ने जो बात की, इट वाज फिनोमिनल। एंड आई होप, आई विश, और हमारी दुआएं हैं कि हम उस डायरेक्शंस में जाएं, उस समत में जाएं, और वो जो चीज़ें हमने अपनी एक मेंशन की, मेड इन पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तानीज़, एवरीथिंग शुड बी मेड इन पाकिस्तान। तो आई स्ट्रांगली सपोर्ट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि आप और मिस्टर रिजवान जाफ़र एक बहुत बेहतरीन ब्रांड जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं मेड इन पाकिस्तान के नाम से। एक तरह से ब्रांड ही कहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी ब्रांड बन जाएगा, आई नो। तो क्या कहते हैं इसके लिए आप? देखिए ये पूरा ब्रेन चाइल्ड रिजवान का ही है, मैं तो सिर्फ सपोर्ट कर रहा हूँ। ये पूरा उसी की मेहनत है और उसकी टीम की मेहनत है। मैं सिर्फ इसका पहला मेंबर बन के, और मैंने कहा कि लोगों को इस तरीके से बुला के इसकी प्रॉपर लॉन्च कर देते। बाकी वो अल्लाह ताला उनको बरकत दे। आज के ज़माने, आज के इस वक्त के लिए पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स वैसे ही बढ़ाने की ज़रूरत है, और यहाँ के लोगों को चाहिए कि प्रॉपर पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें लें, ताकि उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का बिल भी कम हो, डॉलर के ऊपर भी प्रेशर कम हो, हमारी लोकल सनतें भी चलें, जिसमें रोज़गार के लोगों को मौके मिलें। इसलिए कि गुर्बत का जो आलम है ना, वो बढ़ता जा रहा है, इसी तरीके से रोज़गार कम होता जा रहा है। तो हम इसी तरीके से नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, नए कारोबार जिस तरीके से बढ़ेंगे, तो लोगों को रोज़गार का मौका भी मिलेगा और ये काम भी आगे चलेगा इंशाअल्लाह। तो मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे, इसलिए कि ये है तो हमारा पाकिस्तान। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।